Hello everyone. Well, this video I'm making for those people who are going to give this June exam. I'll be talking very fast and this is going to be a very short video but highly important because in this video I'm going to show you like basically how your day should look like. Your routine basically from the time you wake up till the time you sleep. Everything. First off, if you're ready to give your 100%, basically 1000%, only then see this video till the end. And if you're not ready, then please skip this video right now. Because in this routine, you won't have time for doing this and that and all the unnecessary stuff. So if you're ready to give 100%, only then see this video. Okay, let's start and not waste time because you don't have time. Enough time. Yeah. So at what time should you wake up? 6 a.m. But to make sure that your day starts from 6, you need to wake up at 5:45 a.m. That's the time when I used to wake up, right? And in 15 to 20 minutes, you need to do your brush, poop, bathing, getting ready, every damn thing. Till 7 a.m. Every day, I used to walk. And I highly recommend start your day with exercise so that the endorphin, the music, just gets you started and you don't ever have the days where you don't know, you feel clueless in the morning. If you kickstart your day with exercise, you will never face this problem. So I usually divide my day into 3 sessions, 3 slots, okay? I used to start my study from 7 a.m. till 12 p.m., right? This used to be my first session. It is of 5 hours if you calculate. So in this 5 hours, 2 hours, you can easily you can easily do two intermediate subjects, right? 2 hours and जो 1 hour बचता है, तो this 30 minutes MCQ solve करोगे आप. This is for MCQ. Okay. Now this is how your first session will look like. You guys know intermediate subjects, right? Let me just write. Sorry, this writing speed. I'm just intimidated by camera and everything. Intermediate की spelling क्या है? हाँ ठीक है. I think यही है यार. Please don't come in the comments कि ये वाली spelling गलत है and ये focus करो यार जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पे. Intermediate subjects जैसे कि ऑप्था, ENT, pediatrics, कौन से और forensic. Basically most of the subjects are intermediate only, so all the intermediate subjects you can do in the morning session. Don't start with like small short subjects क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि क्या ही है, and if you start with big you'll be intimidated and you'll just stress up. So I think intermediate subjects are the best thing to go in the morning, early morning, right? तो 12 के बाद from 12 till 1 you'll have break, yeah. 5 घंटे बाद ब्रेक, ठीक है. सुबह के 5 घंटे आप बिल्कुल ब्रेक नहीं लोगे, बिल्कुल भी नहीं. यू डोंट डिजर्व इट इन मॉर्निंग. या तो 12 to 1 there is break. Just eat your lunch in this and do whatever you want to, but what you can't do, let me tell you, you can't go to internet, okay? You can't go to Insta. ब्रेक में भी नहीं जाने का है और इंस्टा अनइंस्टॉल कर दो वरना आप खुद को अनइंस्टॉल करने की बात करोगे रिजल्ट के बाद, ठीक है. तो इंस्टा नहीं देखना है, यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं देखने के हैं, बेसिकली टाइम पास नहीं करने का है. व्हाट यू कैन डू इन योर ब्रेक इज आई यूज्ड टू what I used to do, I used to sleep in my break. And basically 5 घंटे लगातार अगर आपका दिमाग full on focus पे है, it causes burnout, fatigue. So after 5 hours you definitely deserve a break. So just lie down, just sleep, and sleeping is the best thing you can give your body while FMG preparation. So I highly recommend sleep, highly. And ठीक है, तो 5 घंटे के बाद आपको फिर से सोने को मिलेगा. सोने को मतलब लाइक रेस्ट करने को मिलेगा, ठीक है. Then from 13, that is from 1 p.m. till 17 till 5, okay? So from 1 to 5 you are gonna do big subjects. Big subjects में क्या आता है? PSM आता है, PSM, ऑब्स गायनी, सर्जरी, मेडिसिन, ठीक है. उनमें से कोई भी सब्जेक्ट उठा लो. तो 2 सब्जेक्ट आपको करने हैं बिग वाले के. फ्रॉम 1 till 5, दैट मीन्स लाइक 4 hours का है. तो व्हाट यू आर गोना डू इन दिस इज 1.5 hours, 1.5
you're going to do the theory part and then बचा कुचा जो अपना 30 मिनट है उसका आपको क्या करने का है, उसका आपको ये करने का है, MCQ करने का है, ठीक है। तो तीनों सेशंस में आपके MCQ होने वाले हैं 1-1 घंटे के। ओके, सो फर्स्ट स्लॉट डन, सेकेंड स्लॉट डन, एंड नाउ द लास्ट स्लॉट 5 till 6. What you're going to do is, again, you will have break. Okay, and in this break, in the evening break, what I used to do was I used to go to walk again for 1 hour, 5 to 6, and I used to just listen to my music. One day, I think I'm very possessive when it comes to my music, so I won't share it, but you need to find your own music that highly motivates you. And there are a few songs. Okay, let me tell 2-3 songs वो वाला सुनने का, जिंदा है तो प्याला and भाग मिल्खा, and then what, ऐसी धाकड़ है that song. And then there are a lot of French songs that I used to listen for no reason, but that just brings so much, you know, calmness and stuff. And फिर Korean songs भी है, Chinese भी है, और कौन से, हाँ English के है जैसे It's Time, Carry On, yeah, I used to love that song by Joy, and many more songs are there. Okay, just find your own songs that will, you know, just regenerate your efforts and everything, and just आग लगा दे आपको, ठीक है, क्योंकि गाना is a tool that you can motivate you to any extent. So just listen to all the motivational songs जो कि ऐसे बहुत हाई बीट वाले हैं वगैरह, ठीक है, गजल मत सुनने लग जाना। ओके, तो जो तीसरा स्लॉट है 6 to 9, 3 hours, and I think 3 hours for 3 subjects, 3 short subjects is more than enough. इसमें क्या करने का है आपको, 40 minutes थेरी करना है स्मॉल सब्जेक्ट का, और फिर बचे ओए ओके, सो 40 minutes आपको थेरी करना है 3 सब्जेक्ट्स का, एंड देन बचे हुए 20 मिनट जो बचते हैं 1 घंटे में, तो उसका आपको MCQ करना है, ठीक है। सॉर्टेड, समझ में आया? तो बेसिकली ये है आपका पूरा दिन का रूटीन। अगेन लेट मी जस्ट टेल यू इन शॉर्ट, ठीक है। 6 बजे आप लोग उठोगे, फिर 6 बजे से 7 बजे तक के आपको एक्सरसाइज करनी है मतलब करनी है, ठीक है। नो एक्सक्यूज, क्योंकि एक्सरसाइज इज सो इम्पोर्टेंट। आई कैन नॉट टेल यू, आई थिंक आई वाज स्टेबल इनफ, काम इनफ, एंड एक डिसिप्लिन आ जाता है बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज। एंड इफ यू डू इट इन द मॉर्निंग, यू नो, यू विल बी हाईली मोटिवेटेड। आई एम टेलिंग यू, जस्ट करके तो देखो यार, करके तो देखो, बस एक दिन ये रूटीन फॉलो करो, यू विल फील सो प्रोडक्टिव, सो accomplished, just, you know, आग लगा देंगे आप लोग अगर ये फॉलो करोगे ना फॉर 4 months, यू आर जस्ट गोना बी ऑन फायर, ठीक है। 6 बजे उठना है, 6 से 7 आपको एक्सरसाइज करनी है, फिर 7 से 12 आपको कोई भी 2 इंटरमीडिएट सब्जेक्ट्स करने के हैं, लाइक ऑफ द ENT ले लो या फिर PRX ले लो, या मैदान में बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, कोई भी सब्जेक्ट के साथ खेलो, ठीक है, इंटरमीडिएट वाले। तो मैंने आपको बता दिया है 2-2 घंटे करने का है थ्योरी, और फिर बचा कुचा आधा घंटा जो है उसका MCQ करने का है। फिर उसके बाद 12 से 1 आपका ब्रेक है, फिर 1 से 5 आपका सेकेंड सेशन है, सेकेंड स्लॉट होता है, एंड इसमें लाइक बिग मेजर सब्जेक्ट्स आपको करने के हैं। 1.5 घंटा दे दो, ठीक है। एंड अभी आई थिंक कि आपका फर्स्ट रीड हो चुका है, इसके लिए मैं 1.5 बोल रही हूँ क्योंकि आपने फर्स्ट रीडिंग तो कर रखा है। फिर 1.5 में आप लोग पूरा थ्योरी करोगे, फिर जो 30 मिनट्स बचे हुए हैं उसमें MCQ करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन 5 से 6 बजे तक के आपका ब्रेक है, और फिर 6 से 9 आप स्मॉल सब्जेक्ट्स करोगे, ठीक है। स्मॉल सब्जेक्ट्स 3 सब्जेक्ट्स आपको करने के हैं 3 घंटे में, 40 मिनट्स, एंड देन बचे हुए 20 मिनट आपको MCQ करने का है। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। आई हाईली रिकमेंड यू गाइस टू फॉलो दिस, क्योंकि ये मैं फॉलो कर दी थी, एंड कुछ दिन होता है, कुछ दिन ऐसे भी होता है कि आप फॉलो नहीं कर पाते हो, सो यू नो, बट इफ यू फॉलो दिस फॉर मेजॉरिटी ऑफ डेज इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। उसके बाद लेट मी टेल यू द सीन ऑफ GTA। आई एम टेलिंग दिस विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, मेरा भी एक्सपीरियंस है। पहले यू नो इतना एक्सपीरियंस नहीं रहता, इतना दिमाग भी नहीं रहता, वो कर करके आ जाता है। तो GTA का सीन बताती हूँ मैं आपको। आपके पास 4 महीने हैं, 4 से कम है बेसिकली, बट मैं 4 पकड़ रही हूँ, ठीक है। मार्च अप्रैल मई का सीन अलग है, और जून का सीन अलग है। तो जून में आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग लाइक अकेले हो, यू आर नॉट फॉलोइंग सम सॉर्ट ऑफ, यू नो, क्या बोलते हैं, you're not going to offline classes and stuff. I
दैट इज व्हाट पर्सनली इज माय ओपिनियन कि जून आप खुद को दे दो, क्योंकि जून में बेसिकली क्या है, आप किसी और के ऊपर डिपेंड रहोगे और उनका नहीं हो पाया पूरा 19 सब्जेक्ट्स का रिविजन करवाना जून में. सो दैट्स रियली डेट्रीमेंटल. दैट्स व्हाट आई फील. आई डोंट नो व्हाट यू फील. तो बेसिकली आपकी मर्जी है, मानना मानो, नहीं मानना मत मानो, ठीक है. तो जून में आप अगर अकेले रहते हो और खुद से सब करते हो स्ट्रैटेजिकली, तो आई थिंक दैट्स वे मोर बेनिफिशियल देन यू गोइंग टू सम इंस्टीट्यूट. ठीक है. तो मार्च अप्रैल मई का सीन बताती हूँ मैं आपको जीटी का. आप हर 10वें दिन यू आर गोना गिव एवरी 10th day a GT. I'm going to talk about people who have offline classes also. उनको भी नहीं छोड़ सकती ना, ठीक है. पहले ऑनलाइन वालों का कर लेती हूँ, उसके बाद ऑफलाइन वालों का, ठीक है. एवरी 10th day you are gonna give GT. एंड जून में आपको ना हर फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, हर 5th डे को आपको GT करने का है. अगर आप कैलकुलेट करते हो सब सारे GTs, आई थिंक अराउंड 14 GTs हो जाएंगे. पता नहीं यार, फिर से कैलकुलेट कर लो तुम लोग, लेकिन अराउंड 14 तो हो ही जाने चाहिए, ठीक है. तो या दैट्स द प्लान फॉर जीटी. तो जैसे मैं ऑफलाइन वालों के इधर आती हूँ, ठीक है. नहीं, ऑफलाइन वालों का जीटी का सीन है ना, जीटी का सीन पहले सुधारती हूँ, क्योंकि ऑफलाइन वालों का बात ये होता है ना कि दे जस्ट गो टू क्लासेस फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट. दे गेट सो एग्जॉस्टेड. मतलब एक जगह बैठना तो भाई मुसीबत आती है. तो इतना एक जगह पे बैठने के बाद ना ही दिमाग आई थिंक ढंग से काम करता होगा, था ही बहुत एग्जॉशन होता है इन शॉर्ट ऑफलाइन वालों को. तो लाइक 5 घंटे का जीटी वो लोग कैसे एडजस्ट करेंगे, वो भी क्लासेस अगर होती है तो आई एम टेलिंग यू कि जीटी आपको ऐसे नहीं देने का है कि लाइक पूरा 5 घंटे एक साथ बैठ के पूरा का पूरा 300 क्वेश्चंस करने के हैं. गिव इट इन लाइक 2.5 वाला, ठीक है. तो आप ना एक जीटी को 2 दिन ले लो. मतलब इधर आप एक दिन आप पेपर 1 कर लो 2.5 आवर्स का, पूरा क्लासेस होने के बाद रात को आप घर पे जाओगे तो 2.5 आवर्स तो आप निकाल ही सकते हो, ठीक है. और फिर दूसरे दिन बचा हुआ 2.5 आवर्स कर लो. तो ये है उन लोगों के लिए जो क्लासेस जाते हैं. तो क्या होगा फिर, मतलब आप अगर 2 दिन पकड़ते हो जीटी देने के लिए, तो फिर भी आपके पास बचते हैं अराउंड 8 डेज, ठीक है. तो इन 8 डेज में क्लासेस जब चालू होंगी तब आप पर डे 40 क्वेश्चंस कर लो एनालाइज, ठीक है. तो बेसिकली आपका जीटी भी हो रहा है, आपको स्ट्रेस भी नहीं आ रहा है, और 8 डेज आपको मिल रहे हैं एनालाइज करने के लिए. और वो 40 क्वेश्चन है, ठीक है. आप एक सिटिंग में 10-10 क्वेश्चन कर लो. It's pretty easy when you break things to smaller targets. That's what I used to do, and I think that was my winning strategy because I used to break down every damn thing. I used to make it so digestible कि ऐसा लग रहा है इतना सा करना है, ये तो ऐसे कर लूंगी. So आपको डराना नहीं है अपने दिमाग को कि इतना पूरा किताब है, ये पूरा का पूरा किताब करने का है. तो बेसिकली आपका दिमाग ब्लॉक हो जाएगा. ये ऐसे पागल धंधे नहीं करने के आपको, ठीक है. जून का जो सीन है ना, देखो जून का मैं टाइम टेबल आपको जून में देती हूँ, अभी बताने से कोई फायदा तो है नहीं. तो या इन शॉर्ट दैट इज द रूटीन, एंड आई थिंक दिस रूटीन इज मच मोर सूटेबल फॉर ऑनलाइन पीपल. और ऑफलाइन वालों के लिए मैंने आपको जीटी का सीन तो बता ही दिया है, आपको कैसे करने का है. 2 दिन में डिवाइड करके आप जीटी एक दे सकते हो, एंड 8 डेज में यू कैन एनालाइज एंड देन जस्ट कीप ऑन डूइंग दिस. और जो ऑफलाइन वाले हैं उनका स्पेसिफिक टाइम टेबल होगा, जो बड़े बड़े सर लोग दिग्गज लोगों ने बनाया है. तो ऑब्वियसली ट्रस्ट देम, राइट, ट्रस्ट देम, जस्ट गिव योर 100% एंड आप डेफिनेटली मोस्ट डेफिनेटली हो जाओगे इस बार. मतलब आपको लगता है अगर आप ये रूटीन फॉलो करोगे जिसमें 12 आवर्स इफ यू आर स्टडिंग एवरी डैम डे, यू आर गिविंग योर एवरीथिंग, यू आर डूइंग थियरी, MCQs, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस रूटीन. डू यू रियली थिंक यू विल फेल आफ्टर दिस? इट्स नॉट पॉसिबल. हाउ इज दिस पॉसिबल? अगर आपका दिमाग एवरेज भी है ना, बेसिकली अगर आपको ऐसा लग रहा है नो मैं आई एम नॉट दैट शार्प, कुछ याद ही नहीं होता, अगर आप 12 घंटे रोज घिस रहे हो ना यार, कोई भी पास हो जाएगा. यू जस्ट हैव टू गिव योर 100%, यू जस्ट हैव टू. एंड
Yeah, so for offline people, obviously you are in very good hands. जो भी इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे जो लोग टीचर्स होते हैं, they are like दिग्गज people. So अगर उन लोगों ने टाइम टेबल बनाया है, obviously उनका सेपरेट टाइम टेबल होगा, स्केड्यूल होगा, so follow that. एंड मैं बस उनके लिए GT वाला ऐड कर लो कि हर 10 दिन में आपको GTs देने हैं खुद से एंड एनालाइज करने हैं क्लास के ब्रेक्स में. इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई फॉरगॉट टू टेल कि आपको मैक्स टू मैक्स 11:30 इज द मैक्स टाइम. यू मस्ट स्लीप एट 11:30 और सुबह लेट उठना नहीं. 5:45 मतलब 5:45, मैक्स टू मैक्स 6 o'clock, ठीक है. और 7 को शार्प आपका डे बिगिन होना ही होना चाहिए, ठीक है. और एक्सरसाइज इज मस्ट. एक्सरसाइज इज मस्ट. 1 घंटा लगे तो कम पढ़ाई कर लो, लेकिन आप अगर एक्सरसाइज करते हो तो आपका दिमाग इतना अच्छा होगा. I cannot stress this enough. I really hope that you guys like this video and you're motivated enough, inspired enough to, you know, do this. Please share it with your friends जिनका unfortunately नहीं हुआ पिछले बार, and जो पहली बार देंगे जून में. अपने दोस्तों का भी भला चाहते हो तो दोस्तों को ये वीडियो सेंड करो and together, you know, just paper setter की बैंड बजा दो. Okay then, bye.